Base year in national income accounting means the year whose prices are being used to calculate the real GDP. The year whose price देखिए base year does not refer the income calculation but the price references. ठीक, nominal GDP is measured at current prices. ठीक, नॉट बेस ईयर प्राइसेस. अच्छा, मतलब नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे है. बेस ईयर इज द ईयर हुज प्राइसेस आर यूज्ड एज रेफरेंस टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी. ठीक, द करंट बेस ईयर ऑफ इंडिया इन 2024 इज 2011 से 2012 तक. लेकिन अभी जो है 2022 और 23 करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, मैं बता रहा हूँ. If India's GDP is measured in 2024 using 2011 to 12 prices, it is called GDP at constant price, यानी कि रियल GDP. ठीक, और अगर करंट का मतलब एक साल के अंदर का तो वो नॉमिनल GDP. बेस ईयर रिलेट्स टू प्राइसेस नॉट इनकम कैलकुलेशन. ठीक, द बेस ईयर इज यूज टू कैलकुलेट रियल GDP बाई एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन. ठीक, indicate the vital change in the measurement of national income of India recently. तो ये क्या है, both the base year and calculation method have changed. ठीक, in 2015 India changed the base year from 2004 to 5 to 2011-12 and adopted the gross value added method. ठीक, GDP is now measured at market prices instead the factor cost. Okay, अलाइनिंग विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. मतलब फैक्टर कॉस्ट में इन्फ्लेशन घटा दिया जाता था लेकिन मार्केट प्राइसेस में रहता था. ठीक, बेस ईयर चेंज इज करेक्ट बट इट डिड नॉट कवर कैलकुलेशन मेथड चेंजेस. फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस चेंज इज करेक्ट बट डज नॉट इंक्लूड base year change. Constant and current price calculation always exist, but the key change was in base year. In new GDP data, base year has been changed from to 2011-12. अच्छा, अब जो है ये मतलब जो कमेटी बनी है 2022-23 करना चाहती है. ठीक, अब देखिए क्या वो निर्णय देती है. अच्छा, ये तो पुराने क्वेश्चंस थे. NSO early CSO is responsible for national income computation in India. Capital formation data is collected by RBI and NSO. ठीक, base year in the year whose prices are used to calculate real GDP, inflation adjusted GDP. ठीक, in 2015 India changed its base year from 2004 to 2011-12 and switched from GDP at factor cost to market prices. As of 2015, base year of national income estimation is 2011-12. In India, for estimation of GDP at constant price, the present base year is 2011-12. ठीक, which of the following is correct base year of measuring national income? अभी तो 2011-12 है. The new GDP series released by CSO in February. अच्छा, ये तो तब का है 11-12. Economic development requires a multi-dimensional approach. बिल्कुल सही है. The present government of India is focusing mainly on micro economic issues. नहीं, गलत है. Economic development is not just about GDP growth but also about poverty reduction, employment generation, human capital development, education and health, environmental sustainability. The multidimensional approach is supported by UNDP's Human Development Index. ठीक, the government does not focus only on microeconomic issues. It deals with both micro and macroeconomic issues like inflation control, fiscal policy, employment growth, industrialization. As per data released by the Government of India in March 2011, the per capita income of Indians rose by 14.5%. अच्छा, अभी का करंट देखा जाए, according to Economic Survey 2012-13, the per capita income at current prices of 2009-10 was 46,249. ठीक, अभी क्या सीन है, पर कैपिटा इनकम
has since increased significantly in 2022-23 estimate current prices पे कितना था 1,69,496 रुपीज़ ठीक। लेकिन सेकेंड एडवांस एस्टिमेट क्या था 1,83,236 रुपीज़। ये ध्यान रहे ये करंट प्राइसेस पे था ठीक। ओके अच्छा in which year was the growth rate of India's per capita income at constant price the highest during the period 1951 to 2016 2015-16 तो ये 2010-11 में था ठीक। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट इन की ईयर्स 2010-11 हाईएस्ट ग्रोथ रेट लगभग 8.6% ड्यू टू द पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रिकवरी। 2007-8 में क्या था हाई ग्रोथ बिफोर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। बाकी उसके बाद क्या हुआ 2014-15 और 15-16 में मॉडरेट ग्रोथ ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन था द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइसेस ड्यूरिंग 9 मतलब उससे लेके अभी तक वो कितना लगभग 8.6% अभी तक ये मतलब है। और 2007-8 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी लगभग 8.2% जीडीपी का। करंट बेस ईयर ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम एस्टिमेशन क्या है 2011-12 1993-94 was the base year of GDP series released in 1999. Per capita income in 2009 or 10 was 46,500 अभी लगभग 1,83,000 के ऊपर है। इंडियाज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस वाज 2010-11 और मतलब जीडीपी सबसे ज़्यादा 2007-8 में बढ़ी थी। ये 8.6% था ठीक है। आगे आ जाए इन द ईयर 2010-11 एट 2004-5 प्राइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। अच्छा अभी तो बढ़ गया है। ये देखते हैं इन द 1990s विच ईयर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट 1999। लेकिन अभी क्या है अभी का सीन क्या है 2007-8 जो था वो सबसे बढ़िया जीडीपी को वो ग्रोथ करने वाला मतलब वो बना था साल 8.7 के करीब। The highest growth rate of Indian economy was witnessed in 2006-7 ठीक। क्या हुआ था as per economic survey 2022 the highest GDP growth in 20s was 2006-7 this was 8% growth as per 2011-12 base year series। जैसे 2006-7 saw industrial growth and booming services sector contributing to India's rapid economic expansion। Consider the following statement about GDP and per capita income. The growth rate of GDP has steadily increased in last 5 years। ऐसा कुछ नहीं अभी के सिनेरियो में तो कह सकते हैं The growth rate in per capita income has steadily increased in last 5 years। ऐसा नहीं है GDP growth has not been steady in last 5 years। The COVID-19 pandemic caused contraction in 2020-21 मतलब लगभग 6.6% माइनस में चला गया था बिफोर रिकवरी इन 2021-22 कितने का रिकवरी था 9.1% का। रिसेंट जीडीपी ट्रेंड्स क्या है 2018-19 में 6.1 था 2019-20 में 4 था 2020-21 में -6.6 था लेकिन 2021 और 2022 में 9.1 था।
ठीक। India's economic recovery has been strongest post COVID-19 but not steady over past 5 years. ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कीवर्ड्स। जो हम लोगों ने अभी तक कीवर्ड्स पढ़े हैं, जो हम लोग जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। ठीक। जीडीपी क्या होता है? देखिए, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब देख लेते हैं टाइप्स क्या होते हैं। नॉमिनल जीडीपी मेजर्ड एट करेंट प्राइसेस विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। ठीक। रियल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस। और नॉमिनल करंट प्राइसेस पे वो एड्रेस किया जाता था। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक। इकोनॉमिक क्लास मार्केट प्राइस क्या करता था? इंक्लूड टैक्सेस एंड सब्सिडी। ये क्या है? अभी 2024-25 का ग्रोथ रहने का अनुमान क्या है? 6.5% NSO का एस्टिमेट है। ठीक। ग्रास नेशनल इनकम जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।